Last time we had studied EMI part 1 is over. I'm starting with part 2 of EMI, that is alternating current. We had studied rotating coil in a magnetic field. In that we studied that the EMF which was developed was E naught sine omega t, where E naught was termed as the peak value, which was NAB omega, where omega was written as 2 pi f, so it is NAB omega, that is 2 pi f, and this value was termed as the peak value. If we develop the current over here, that E will become I into R, so I will become E by R, which can also be written as E naught sine omega t, by R, which can also be written as I naught sine omega t, where over here I naught will be E naught by R, that is peak value. So we have developed two equations, I naught sine omega t and E naught sine omega t, and I have drawn the graphs also last time, that the graph of E versus I, E versus omega t and I versus omega t, if we see this is omega t, the graph of E will be this way, 0, E naught, pi, 3 pi by 2 and 2 pi. This is minus E naught. And if I draw I as I naught sine omega t, it will be this way. This is I naught and this is minus I naught. It's there. So if I use the language of our SHM, I can say both are there in the same phase. You can see this is also sine omega t and this is also sine omega t. Plus 0 means the initial phase is 0. Both are starting from 0, going to maximum value, again coming to 0, coming to this negative value, and both are coming to 0 at the same time. Yes or no? We have studied, no? We know that in SHM we have studied like this, that if this is the SHM, this is the mean position and this is the extreme positions, this is the mean position, this is the right extreme and this is the left extreme, and we have studied that if one SHM is going this way, it will travel this way, then again come back, then go here and come back. And if I plot this along a circle, I have taught you this in the reference circle method, that if this particle comes here, we plot it and we say that if it starts from here, then he is covering an angle of omega t in time t. Beta, this is time 0, na? This is time t. And the displacement covered over here is how much? Beta, x. So we know if this is x, this distance will also be x. Look, now we are just creating a replica. And this distance is how much? A. So for this we plot that x is a sine omega t plus 0. We are starting from 0, right? This language we know that is as the reference circle method. Right or not? We had studied this in the chapter of oscillations. Now, there is another language which is termed as language of phasors. Phasor diagram. What is phasor? Phasors are rotating vectors.
You know, as we have the vector diagram, that is the parallelogram law, triangle law. Whereas there is a phasor diagram which is called as rotating vectors, rotating vector diagram. Now in this whole chapter, that is alternating current, we are going to study the whole language in terms of rotating vectors. Oscillation we studied in terms of reference circle method. To make the language easy, we have studied this in terms of rotating vectors. What are rotating vectors? See, suppose there is a circle, if I take, and beta, if I take this as E naught, this vector as E naught, look at the diagram. If E naught is 0, okay, if E is 0, I is also 0. Can I say E naught and I naught are there at the same place? But E naught is bigger and I naught is smaller. Then when E naught will come here, I naught will come here. Both are together only, na? Yes or no? Beta, this is the instantaneous value of the current, and this is the instantaneous value of what? Whom? The EMF. Look now, how much was the instantaneous value of EMF and current? 0, na? Beta, imagine them going along the y-axis. 0. Then when it comes here, it will be maximum. So at that time, this whole thing will be E naught and this thing will be I naught. Look now, this vector will come here. Yes or no? Can I say this is 0? This is beta 90. This is 180. This will be 270 and this will be 360. Yes or no? It's very, very important to understand. This diagram, rotating vector, is a phasor diagram. Means when they start from 0, if I make a projection over here, E naught is also 0 and I naught is also 0. At 90, what happens? I naught is maximum and E naught is also maximum. So at 90, matlab aise, idhar, this angle. I can say when they reach here, he will reach here. So E naught will reach its maximum value and I naught is also reaching its maximum value. What say? And this is some angle alpha, which I can say in between angle. What say? Are you understanding? So E naught, I naught will keep on varying, and this kind of diagram is termed as which diagram? Phasor diagram. I can say over here current and voltage both are in the same phase. What say? Current and EMF are in the same phase, beta. Over here, is not necessary always they are there in the same phase. After this, we'll be studying average value of AC. Average value of alternating current. सपोज एक डीसी वैल्यू है, एक डीसी करंट है. डीसी करंट कैसे होता है भाई? डीसी मतलब क्या? 10 एम्पियर है तो 10 एम्पियर ही रहेगा ना हमेशा. सो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू? 10 मींस आई एवरेज ऑफ दिस इज IDC. आई एवरेज ऑफ दिस इज IDC. Okay. But if I have an AC value, okay, from 0, T by 4, T by 2, 3T by 4 and T is I, and this is I naught total. This one, and this is minus I naught. ओके इसका एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका एवरेज वैल्यू ऑफ द होल साइकिल विल बी 0. आई एवरेज
फ्रॉम 0 to t, मतलब फुल साइकिल के लिए विल बी व्हाट 0, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव वैल्यू एंड दिस विल बी नेगेटिव वैल्यू. ये समझ में आ रही है? जीरो कैसे आता है? मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, घर पे जाकर ट्राई करना है आपको. मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन का होमवर्क है. देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा. आई एवरेज का फॉर्मूला इज 1/T2 minus T1 इंटीग्रेशन ऑफ T1 to T2 I dt IAC dt. ये उसका एवरेज वैल्यू का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है. 1/T2 minus T1 I dt by dt. व्हाट इज I dt? चार्ज ना बेटा. चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है? करंट होता है ना. वो तो वही फॉर्मूला है. बट दिस चार्ज इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज चेंजिंग ना. कभी ज्यादा चार्ज जा रहा है, फिर कम चार्ज जा रहा है, फिर बहुत कम चार्ज जा रहा है. तो इसके लिए हमने ये किया है. फॉर्मूला समझ आ गया? अभी सपोज मैं हाफ साइकिल के लिए निकालता हूं. हाफ साइकिल मतलब क्या? आई एवरेज. आई कैन से 1 to T/2 ना. 0 to T/2 AC. इसका इक्वेशन याद है? आई नॉट साइन ओमेगा टी. इसके पहले किया, अभी थोड़ी देर पहले. इसका इक्वेशन है तो व्हाट? आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी. आई नॉट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 आई नॉट बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 to T/2. यस और नो? ये आप सॉल्व करेंगे. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा. एंड इंटीग्रेशन के लिमिट्स चेंज कर देना आप. T/2 को कर देना पाई बाई ओमेगा, बिकॉज व्हाट इज टी? 2 पाई बाई ओमेगा ना भाई. तो विल बी T/2 पाई बाई ओमेगा. लिमिट चेंज करने आता है ना इंटीग्रेशन में. तो इसको लिख सकते हैं पाई बाई ओमेगा. फिर व्हेन यू पुट दिस, okay, this is not there in your government textbook. I'm not proving it right now, but I just wanted you to know that what answer comes. तो ये आई एवरेज आपको आंसर आएगा 2 I naught by pi. For how many cycle? For half cycle. सही ना बेटा? 0 to T/2 तक इंटीग्रेट किया ना. मतलब इसका एवरेज वैल्यू कितना आया? 2 I naught by pi. तो इसका एवरेज कितना आएगा बेटा? So what will be the average value? 0. या आप घर पे जाके ट्राई करना, कोई बड़ी बात नहीं है. It will be helping you in practicing maths also. समझ में आ गया? एकदम क्लियर होना चाहिए. तो I can say the average value of AC over one cycle is 0. The average value of AC, average value of DC is constant. Yes, very good. Constant है. मतलब चेंज है 10 10 10 10. मगर यहां पर एवरेज वैल्यू 0 आएगा. तो हम क्या करेंगे सर? एम मीटर जो होता है ना, एम मीटर, हमने जो एम मीटर पढ़ा, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, एम मीटर, वोल्टामीटर. एम मीटर ऑलवेज मेजर्स एवरेज वैल्यू. और आई कैन से डीसी एम मीटर ऑलवेज मेजर्स एवरेज वैल्यू. मतलब एक एम मीटर अगर हम डीसी एम मीटर लेकर आ गए और हमने इधर प्लग में डाल दिया, तो व्हाट इज गोइंग टू रीड? 0. पॉइंटर विल नॉट मूव ओनली बिकॉज इट इज रीडिंग एवरेज वैल्यू. एंड हाउ मच इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन साइकिल? 0. तो क्या करेंगे सर? मेजर कैसे करेंगे करंट को? There's another type of ammeter which is made. तो हमको पता चल गया कि हम एवरेज वैल्यू नहीं गिन सकते, क्योंकि एवरेज वैल्यू गिनने जाएंगे तो 0 है. हमारे हाउस होल्ड अप्लायंसेज एसी होते कि डीसी होते? एसी. सब सप्लाई भी क्या है? एसी. 220 वोल्ट एसी. मेजर कैसा करेंगे भाई? तो एक नया टाइप का एमीटर बनाया गया है, दैट इज टर्म्ड एज हॉट वायर एमीटर, विच विल मेजर एसी. अच्छा, क्या करता है ये हॉट वायर एमीटर?
Will it measure average value? No sir. अभी सिखाया मैंने आपको कि एवरेज वैल्यू कितना होता है बेटा, 0 होता है, तो मेजर कैसा करेगा भाई, वो 0 है, पॉइंटर मूव ही नहीं होता है। एवरेज वैल्यू ओवर वन साइकिल यू कैन नॉट मेजर, हेंस हॉट वायर एमीटर comes into picture which measures its heating effect. करंट के ना बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट। हम लोग करंट में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन द इफेक्ट्स ऑफ द करंट। इसके लिए तो चैप्टर्स अलग अलग बनाए गए भाई। वी आर इंटरेस्टेड इन करंट, वी आर इंटरेस्टेड इन इट्स इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो यहां पर हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को मेजर करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एंड दैट ammeter is termed as which ammeter? Hot wire ammeter. We'll discuss about hot wire ammeter. I told you average value of AC over one complete cycle is 0. DC ammeter cannot measure AC value because average value is 0. then sir measure तो करना है ना, मेजर तो करना है, वरना हमको पता कैसे चलेगा कितना हो रहा है। तो हमने कौन सा वैल्यू मेजर करना है, दैट इज कॉल्ड एज RMS वैल्यू। इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अच्छा, इसका थोड़ा मैं बेसिक आपको सिखा देता हूं, फिर इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग। सपोज एक बकेट है, आपने इसमें पानी लिया और इसमें आपने AC करंट भेजा जिसका पीक वैल्यू वाज 10 एम्पियर्स। कितना भेजा आपने, पीक वैल्यू कितना, 10 एम्पियर्स। ये 10 मिनट में 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होने लगा। बात समझ आई? मैंने इसमें कितना करंट भेजा, 10 एम्पियर पीक। ये तो ऐसे बढ़ रहा है ना, तो उसका पीक मैक्सिमम वैल्यू कितना था, 10। मतलब 0 से 10, 10 से 0, 0 से -10, ऐसे 10 मिनट में 100 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गया। सही है। हम क्या मेजर कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट। अभी मैंने क्या किया, वही बकेट लिया, उतना ही पानी लिया, यहां पर मैंने 10 एम्पियर DC भेजा। आई कैन से दिस इज IDC। ये भेजा, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल होने लगा, बट 8 मिनट में। क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों का इफेक्ट सेम है? क्यों? कहना है इसका इफेक्ट जल्दी हो गया तो ये बड़ा है, इसका इफेक्ट ज्यादा है, इसका इफेक्ट कम है। अगर इसको 10 मिनट तक करूं तो मे बी वाटर विल रीच बॉइलिंग एंड इट विल स्टार्ट वेपराइजिंग। ये दोनों सेम नहीं है। तो मतलब 10 एम्पियर DC इज नॉट इक्विवेलेंट टू 10 एम्पियर AC पीक वैल्यू। साइंटिस्ट लोगों ने सोचा इसको कम करो। किसको कम करना पड़ेगा? इसको तो नहीं कर सकते ना, बिकॉज इसका इक्विवेलेंट ढूंढना है। AC को ही मेजर नहीं कर पा रहे ना आप लोग, तो AC का इक्विवेलेंट आपको किस में ढूंढना है? DC में। हम मेजर किसको कर पाते हैं? DC को। AC को नहीं कर पा रहे हो आप, तो AC का इक्विवेलेंट हमको DC में ढूंढना है। तो इसको कम करेंगे हम लोग। 9 कर दिया, 8 कर दिया, टाइम सेम करना है ना बेटा। जब मैंने इसको 7.07 एम्पियर किया तो देखा कि यही पानी 10 मिनट में गर्म हो जाता है। कैन आई से 10 एम्पियर AC का इक्विवेलेंट DC 7.07 एम्पियर? दिस वैल्यू is termed as RMS value of this AC. What is the definition of RMS value? I'll give you. RMS value is that DC value which produces same amount of heat
in a resistor as produced by an AC value in the same duration, in the same time. Understood what's happening? DC value, what is the RMS value? That DC value which produces the same heat. इसको समझ के ध्यान से, that DC value, RMS value is that DC value which produces the same heat in a resistor as produced by an AC value in the same time. देखो ना एकदम मैच हो रहा है यार डायग्राम में, मतलब इससे और अच्छा कहां बनाऊं समझाने के लिए. What is RMS value? That DC value which produces the same heat as AC value, matching in the same time in a resistor. रेजिस्टर नहीं भी लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, बट एक्चुअली हीट हमेशा रेजिस्टर में होता है क्योंकि आई एच इज आई स्क्वायर आर टी ना, तो रेजिस्टर भी लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर से बोलो, RMS value is that DC value which produces the same heat in a resistor as produced by an AC value in the same time duration. इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? इन दोनों के बीच में रिलेशन है IRMS is I naught by root 2. मतलब ये अगर 10 is I naught ना, अगर मैं रूट 2 से डिवाइड करूं तो 7.07 आएगा. What is 1 upon root 2? 0.707 into 10 is 7.07. तो ये दोनों के बीच में रिलेशन कहां से मिला? I naught by root 2. कहां से आया? मैं डेरिवेशन करता हूं 2 मिनट में, क्वेश्चन में नहीं है तो आपको इतना ही है, but I want everything should be mathematically derived and you will do the homework of the last 2-3 steps. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले होमवर्क दिया था जो पोर्शन में नहीं था वो, मगर आपको समझ में आना है तो आप वो करिए. वैसे ही ERMS क्या हो जाएगा बेटा? E नॉट बाय रूट 2, बिकॉज वोल्टेज भी फ्लक्चुएटिंग है एंड करंट भी फ्लक्चुएटिंग है, तो दोनों का RMS वैल्यू निकालना पड़ेगा ना. अरे बाबा, वोल्टमीटर भी अगर आप मेजर करने जाएंगे AC को तो वो 0 बताएगा क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज 0 ओनली, चाहे वो वोल्टमीटर से निकाले या एमीटर से निकाले. ये है. You are understanding what's happening. So I have to remove I naught by root 2 and E naught by root 2. Suppose I'll talk about India. In India, how much is the voltage supply? 220. वो कौन सा वोल्ट है? E naught है कि E RMS है? वो RMS वैल्यू है क्योंकि गिना क्या जाता है RMS वैल्यू. E RMS is 220 volt AC supply. And how much is the frequency beta? 50 hertz. मतलब 50 cycles are going in 1 second. So हमारा घर का पीक वैल्यू कितना है? हमारे घर का पीक वैल्यू रहेगा, you know, ERMS is E naught by root 2. थ्री 311 आएगा. ये 311 वोल्ट, मतलब RMS वैल्यू 220 है, उसका हीटिंग इफेक्ट कितना है? 220, बट उसका पीक वैल्यू कितना है? 311. मैक्सिमम इट कैन गो टिल 311. ये आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? सबको क्लियर है ये ना? इसका थोड़ा हम लोग RMS वैल्यू का डेरिवेशन करते हैं. सुनो इधर बात. Listen to me. क्या निकालना है? क्या निकालना है? IRMS, रूट मीन स्क्वायर. सही है. सबसे पहले मैं मीन स्क्वायर वैल्यू निकालूंगा. इधर ध्यान देना. याद है मीन वैल्यू क्या था? एवरेज वैल्यू कैसे निकालते थे हम लोग? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिया था. I1 upon T2 minus T1 इंटीग्रेशन ऑफ T1 to T2 IAC dt ना. अरे याद है? भूल गए यार आप लोग? अभी थोड़ी देर पहले दिया था मैंने. एवरेज का दूसरा नाम क्या है? मीन. एवरेज का दूसरा नाम क्या है? मीन. हमको क्या करना है? मीन स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर
अरे दिस इज मीन ना बाबा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आई मीन स्क्वायर, टाइम को स्क्वायर नहीं करता है, लिमिट इंटीग्रेशन को स्क्वायर करेंगे. यस सर, व्हाट से इज करेक्ट ना? आई मीन स्क्वायर. सपोज इंटीग्रेट फॉर हाफ टाइम, इंटीग्रेट फॉर, तो इधर लिख सकते हैं 1/t/2. बोलो 0 to t/2. आई का इक्वेशन क्या था? आई नॉट साइन ओमेगा टी. अरे आई का इक्वेशन क्या था बाबा? स्क्वायर इट. बोलो अब मैथ्स भी नहीं आता तुम लोग को है. कम ऑन, दिस इज ओके. साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, हाउ टू स्क्वायर, हाउ टू इंटीग्रेट. आई नॉट स्क्वायर बाहर निकाल लू तो आई मीन स्क्वायर क्या हो जाएगा जल्दी बता दो. 2 आई नॉट स्क्वायर बाई टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2. बाई 2 बाहर निकाल के कैंसिल, डी टी. बोलो आई मीन स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर बाई टी क्या हो गया? टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा 0 to पाई बाई ओमेगा. अरे t बाई 2 इज व्हाट? पाई बाई ओमेगा ना, बिकॉज t इज 2 पाई बाई ओमेगा. क्या कर रहे हो? इसको अंदर डालो, इसको अंदर डालो. अच्छा इधर डालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ना इधर डालो. अरे पुट t की जगह पाई बाई ओमेगा बाबा. क्या हो गया? 2 पाई साइन 2 बाई 0. व्हाट मैन, व्हाट मैन. यस और नो? एक मिनट, यहां पर दिस विल बिकम 0 एंड यहां पर पाई बाय ओमेगा. तो यहां पर क्या हो गया जल्दी बता दो मुझे? आई मीन स्क्वायर. ये तो चला जाएगा, ये तो चला जाएगा. क्या हो गया जल्दी बताओ? आई नॉट स्क्वायर बाय बड़ो टी इंटू छोटो टी. छोटो टी की जगह क्या आया? पाई बाय ओमेगा. बट टी को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2 पाई बाय, व्हाट इज दैट? But this is mean square. I need to remove root mean square. Yes or no? तो IRMS क्या हो जाएगा जल्दी बता दो? This proof is not there in the books. You should know. बोलो. तो E नॉट क्या रहेगा? अरे भाई E नॉट बाई रूट 2. ERMS क्या रहेगा? E नॉट बाई रूट 2. E नॉट बाई रूट 2. E की जगह E नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे आप लोग. सेम है ना? समझ में आ रहा है? आरएमएस वैल्यू एक डेफिनेशन दिया है बुक में. इज दैट डीसी वैल्यू प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज प्रोड्यूस्ड बाय एन एसी वैल्यू इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम. अभी याद होना चाहिए, भूलने का नहीं. क्लियर? आई आरएमएस आई नॉट बाय रूट 2, ई आरएमएस ई नॉट बाय रूट 2. इन केस ऑफ रेजिस्टर्स ओनली, ऑल्टरनेटिंग करंट इन केस ऑफ रेजिस्टर्स ओनली. इधर सब लोग ध्यान देना. आई एम डूइंग समथिंग अबाउट 3 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज अ रेजिस्टर, जो हर कंपोनेंट में, हर अप्लायंस में होता है. अभी हम बात करते हैं पूरा एसी के आरएमएस लैंग्वेज में बात करेंगे हम लोग. दिस इज अ रेजिस्टर, दिस इज अ सोर्स. मैंने सोर्स को लिया E इज E नॉट साइन ओमेगा टी एज रेफरेंस. रेफरेंस क्या लिया बेटा? E इज E नॉट साइन ओमेगा टी. बाय ओम्स लॉ यू नो E इज IR. तो I विल बिकम, हमने पढ़ा है E बाय R. सो I विल बिकम E नॉट साइन ओमेगा टी बाय R, which can also be written as I naught sin omega t. What is I naught, sir? E naught by R. ये समझा? ये आपको इक्वेशन मिला, ये आपका इक्वेशन रेफरेंस था.
तो अगर हम इसके ग्राफ्स बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा? ये बेटा ओमेगा टी है, ये ऐसे ई का बना 0, 90, 180, 270, 360. So what sir? E naught minus E naught. वैसे ही I naught का कैसे बनेगा? Can I say they are in the same phase? Yes sir, this is no problem. This is wave diagram. क्या कहते हैं इसको? Wave diagram. I can say over here that in case of resistor, current and EMF are in the same phase. दोनों साथ में चलेंगे। मतलब हमारे सोर्स से अगर E मैक्सिमम होगा तो रेजिस्टर में I भी मैक्सिमम होगा। अगर E 0 होगा तो I भी 0 होगा। और इसका अगर हम फेजर डायग्राम बनाने जाएंगे तो ये अगर E नॉट है तो ये क्या बेटा? I नॉट। एंड इसका प्रोजेक्शन, यू नो इट राइट, डन इट। मतलब ये उसका इंस्टेंट, अगर ये इधर है तो ये E नॉट है और ये क्या बेटा? I नॉट। एंड इसका इंस्टेंटेनियस करंट इतना है एंड इसका इंस्टेंटेनियस EMF इतना है। बोलो। And if both are making an angle of alpha, I will also make an angle alpha, in E will also make an angle alpha. दोनों साथ साथ चल रहे हैं। This is the phasor diagram, जो हमको समझने में बहुत आसान तरीके से बताता है कि ये phasor diagram है। Current and EMF both are there in the same phase. Clear हो गया ये चीज? कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है ये R क्या है? Resistor, which will provide what? Resistance. Resistance is what? Opposition to flow of current. AC current. Yes sir. Clear है? रेजिस्टर का काम क्या रहता है? अपोज करना। डीसी में भी, एसी में भी अपोज। रेजिस्टर ऐसा नहीं है कि एसी को बोलेगा जाओ, डीसी को बोलेगा मत जाओ। नो पार्शियलिटी, एवरीवेयर इट विल अपोज। मतलब कैन आई से इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस रेजिस्टर, कैन आई से इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी? इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब चाहे एसी हो, एसी में फ्रीक्वेंसी होता है ना, एंड डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। डीसी इज दिस डीसी, तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी है इसके पास। तो चाहे डीसी हो या एसी हो, रेजिस्टर सपोज 10 ओम्स है तो हमेशा 10 ओम्स ही रहेगा, वो ऐसे बदली नहीं होगा। तो अपोजिशन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन केस ऑफ एसी एंड डीसी, इन केस ऑफ अ रेजिस्टर। आइडिया क्लियर है? एकदम क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, एकदम इजी था। इन केस ऑफ एन इंडक्टर, इन केस ऑफ अ रेजिस्टर बहुत सिंपल था। करंट एंड वोल्टेज बोथ वर देयर इन द सेम फेज, नोबडी वाज लीडिंग, नोबडी वाज लैगिंग। ई अगर साथ में है आई के, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ई मैक्स होगा तो आई भी मैक्स होगा, ई मिनिमम होगा तो आई भी मिनिमम होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टर? अ सिंपल कॉइल। इसको हमने क्या कनेक्ट किया? एसी से। एसी का सिंबल है बेटा। रेफरेंस हमने क्या लिया? साइन ओमेगा टी। ध्यान देना बेटा इधर। और ये क्या एल है? इंडक्टर इज डिनोटेड बाय द लेटर एल। सेल्फ इंडक्टेंस होता है इसके पास, जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था। दो कॉइल रहेंगे तो क्या रहेगा? म्यूचुअल इंडक्शन। ये सेल्फ इंडक्टेंस है। ये होगा फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्शन बेटा। E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। हमको पता है ये कौन सा EMF है? ये लेंज लॉ वाला EMF है, विच विल अपोज द कॉज। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? E इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। मतलब दिस EMF इज गोइंग टू अपोज द चेंज इन करंट। दिस इज टर्म्ड एज बैक EMF। तो अगर हमको सप्लाई करना है
तो I have to supply an equal and opposite EMF of this to increase the current. माइनस तो दे रहा है वो, तो अगर हमको यहां से बढ़ाना है तो कितना देना पड़ेगा? माइनस और माइनस ना, दैट विल बिकम प्लस. या तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको ऐसे समझता नहीं है तो. ये EMF माइनस एल डी आई बाई डी टी ही वॉज गिविंग. So if I want to increase the current by this amount, then I have to supply equal and opposite ना, like binding energy in gravitation here, plus L di by dt. अच्छा, E को मैंने रेफरेंस लिया, तो यहां पर di क्या हो जाएगा बेटा? बोलो, 1 by L e dt. तो di will become 1 by L E naught sin omega t dt. समझ आ रही है? This is छोटा करंट, instantaneous. I will integrate this. Integration of di है 1 by L E naught बाहर आ गया. What is the integration of sin omega t dt? Yes, come on please. Minus cos omega t upon omega plus c, but c will go because it is time independent. वो हाई लेवल पे समझेगा आपको इंजीनियरिंग में सी क्यों जाता है. सी इज टाइम इंडिपेंडेंट, दैट्स व्हाई इट गोस. यहां पर ये आगे, सो आई विल बिकम ई नॉट बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी. अच्छा, मैं माइनस कॉस ओमेगा टी को लिख सकता हूं साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. See na, actual cos omega t was sin of 90 minus theta, but minus cos theta will become sin of theta minus 90. भाई बात समझ आई कि नहीं है? मैथ्स भी नहीं आता है. sin of 90 minus theta is cos theta, but sin of theta minus 90 will become minus cos theta. बराबर है? तुम लोग बोल सकते हैं सर यहाँ पे 90 प्लस थीटा भी हो सकता था. आगे समझ आएगा ये क्वेश्चन का आंसर, अभी नहीं समझेगा, बिकॉज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा एंड 90 माइनस थीटा बोथ आर कॉस थीटा. मगर यहां पर ऐसे मैंने जानबूझ करके लिखा है ताकि आपको समझ आए. अच्छा, दिस फॉर्म इज अ फॉर्म लाइक SHM बेटा. कैन आई से आई इज, ये क्या बनेगा बेटा? मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. सो आई विल बिकम, जल्दी बताओ, करेक्ट है कि नहीं? वो भी आई नॉट, आई नॉट क्या मिला? ई नॉट बाय ओमेगा एल. इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. आप लोग रेफरेंस ईएमएफ को देखिए, ये मेरा रेफरेंस था. कितना दिया था मैंने? ई नॉट साइन ओमेगा टी. करंट जो मिला दैट वाज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. करंट लीड्स और करंट लैग्स बाय हाउ मेनी डिग्रीज? पाई बाई 2. मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, प्लीज पे अटेंशन. रेफरेंस मैंने क्या लिया? ई. तो ई का ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, ई नॉट माइनस ई नॉट, बोलो 0, लिसन, आई नॉट का ग्राफ कैसे बनेगा? पुट टाइम 0, पुट टाइम 0. अगर ये 0 डालूंगा तो साइन माइनस 90 आएगा, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ 90 1, साइन ऑफ माइनस 90 माइनस 1, तो इट विल बिकम माइनस आई नॉट. मतलब जब ये 0 था तो ये माइनस आई नॉट था. बोलो, फिर ये ऐसे बढ़ेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज माइनस आई नॉट and this will become I naught. बोलो करेक्ट है क्या रॉन्ग है? This is E का ग्राफ and this is I का ग्राफ. और इस टाइप एक ग्राफ में कहते हैं that the current lags the voltage by how many degrees? 90. So I can say in case of inductor, current lags the EMF by पाई बाई 2 रेडियंस. और दूसरे लैंग्वेज में बोलना है तो EMF लीड्स
द करंट बाय पाई बाय 2 रेडियंस। यस और नो सर? एकदम क्लियर है ना? बात समझ में आनी चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हम तीनों को कंबाइन कर देंगे तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी तो मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूं, सब रेजिस्टर पढ़ा लिया, इंडक्टर ये। अच्छा, इसका अगर हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो फेजर डायग्राम ऐसे बनेगा। फेजर डायग्राम बेटा ऐसे बनेगा। कौन आगे है? ईएमएफ आगे है ना? तो ईएमएफ को अगर मैंने इधर लिया ई नॉट, तो आई नॉट किधर रहेगा? पीछे ना 90 डिग्री। बोलो सही है? यस सर। और अगर हम ऐसे बात करेंगे थोड़े टाइम के बाद, तो ई नॉट इधर आ गया तो आई नॉट तो इधर रहेगा ना? यस और नो? ऐसे घूमता रहेगा ना यार। इसे क्या देखने को पता चलता है? द करंट लैग्स द ईएमएफ बाय हाउ मेनी डिग्रीज? 90। करंट पीछे है ना बाय 90 एंड ईएमएफ आगे है। तो आप कोई भी एक लैंग्वेज याद रखो, उसमें से ऐसे आपको याद रखना है। सो इन केस ऑफ एन इंडक्टर, current lags the EMF by how many degrees? 90. और EMF leads the current by how many degrees? 90. बोलो सही है? अभी खत्म नहीं हुआ है। It's not over. Who is the opposition? ये क्लियर हो गया? ये सबको पिक्चर समझ में आ गया? सबको पिक्चर समझ में आ गया? Okay, should I'll rub this, the EMF वाला। अभी हम बात करते हैं अपोजिशन की। यू नो, इन द प्रीवियस केस आई नॉट, बेटा आई नॉट वॉज ई नॉट बाय आर। अरे भूल गए तुम लोग है? ये आर क्या करता था? अपोजिशन, बराबर है। अभी ये रेप्लिका नीचे बनाया मैंने, इधर का अपोजिशन का नाम क्या है? क्या है? ओमेगा एल। अरे देखो ना, कंपेयर करो ना यार, तुम क्या कर रहे हो? द अपोजिशन बाय इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी इज ओमेगा एल। क्या नाम है इसका? ओमेगा एल। आर का नाम क्या था? रेजिस्टर। इट विल प्रोवाइड टेंस। इसका नाम था इंडक्टर। इट विल प्रोवाइड, इसका नाम है रिएक्टेंस। क्या नाम है इसका? बट सिंस इट इज ड्यू टू एन इंडक्टर, इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम दिया गया है? एक्चुअल नाम रिएक्टेंस है, एक्चुअल नाम रेजिस्टेंस है, एक्चुअल नाम रिएक्टेंस है, बट सिंस इट इज प्रोवाइडेड बाय एन इंडक्टर, उसको क्या कहते हैं बेटा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। भूल नहीं जाना इसको। अरे भाई हमको मालूम है ना, ये अपोज तो करता ही है ना भाई। अरे पूरा स्टोरी हमने लेंस लॉ का बताया था। ईएमएफ अपोजेस इट्स, तो इट विल जनरेट समथिंग हु विल अपोज ना, ही विल अपोज। दिस इज द अपोजिशन। अपोज तो करेगा, कौन अपोज करेगा यार? ये अपोज करेगा। अच्छा, इसका स्पेशल नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। मैं और बराबर से लिखता हूं इसको, ओमेगा एल को एक्स एल से लिखते हैं। एक्स सफिक्स एल विच इज ओमेगा एल विच इज 2 पाई एफ एल। इसका नाम क्या बेटा? क्या नाम है? जल्दी बोलो। इंडक्टिव। भूलना मत, नेक्स्ट टाइम आई विल आस्क अगेन। ये opposition, this is the opposition to the flow of AC by an inductor, XL which is omega L which is 2 pi FL. What is the relation with frequency? What is the relation with frequency? Directly proportional to frequency. तो मैं कह सकता हूं XL is proportional to F. तो अगर इसका ग्राफ बनाने जाएंगे हम लोग, XL versus F, it will be a straight line. F बढ़ेगा तो XL भी बढ़ेगा, L बढ़ेगा तो F बढ़ेगा तो XL भी बढ़ेगा। मतलब अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला हम AC इस्तेमाल करेंगे तो अगर कॉइल रहेगा ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा अपोजिशन देगा। मैं अगर कहूं इधर
मैं अगर कहूं फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एक्सएल भी ज्यादा है, मतलब दिस इंडक्टर passes the current ना, इधर ध्यान देना अभी, it will have frequency ज्यादा पे क्या होगा, opposition, it will act like an open circuit. सब CET questions are NEET के सब. At high frequency inductor will act as an open circuit. अपोज ही, सीधा अपोज ही करेगा, जाने ही नहीं दूंगा मैं. But at high frequency, ये, and at low frequency XL कितना है बेटा, ये तो XL max हो गया ना, ये XL कितना हो गया, minimum. Can I say minimum मतलब zero approximately? Can I say it will act like a short circuit? CET questions है. At high frequency inductor acts like an open circuit, जाने ही नहीं देगा करंट को. And at low frequency मतलब negligible frequency, मतलब DC का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, अरे DC कितना होता है फ्रीक्वेंसी, जीरो, तो XL will also be zero, so it will allow DC to pass, it will allow AC to pass. This is क्या फ्रीक्वेंसी, DC to pass, मतलब DC में ये कोई अपोजिशन नहीं देगा. मतलब अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अगर आपको ऐसे आया, सुनो हाँ मेरी बात, ऐसे आया, क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे बना देंगे, आराम से करंट फ्लो होगा, इट विल एक्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट हुज रेजिस्टेंस विल बिकम जीरो. बोलो, सब सीईटी के न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस है, आपको आना चाहिए. और अगर मैं कहूँ बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है तो उसको क्या कर दो, ओपन सर्किट. इसका ही फायदा उठाते हो लोग सीईटी एंट्रेंस में, एक कंसेप्ट लेते हैं, नहीं आता है, ठीक है, भूल जाओ, कीप ऑन ट्राइंग देन. Got it? Have you understood what is an inductor? पूरा क्लियर हो गया. कैपेसिटर C हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, इट्स कनेक्टेड टू एन AC सप्लाई. रेफरेंस हमने फिर से E इज E0 sin ओमेगा t लिया, और हमको I का ढूंढना है कि I कैसे आएगा. You know C is equal to Q by E, V नहीं है, E है. So Q will become C, पर हमको करंट चाहिए ना, करंट इज dq by dt, करंट इज dq by dt which is d by dt, Q is C है ना, C बाहर निकाल देंगे, d by dt of E, but E reference is E0 sin omega t, E0 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी इज ओमेगा कॉस ओमेगा टी. इस चीज को हमने लिखा, ये क्या मिला, सॉरी ये आई है, सॉरी सो बी आई, ये क्या बन गया बेटा, आई नॉट. इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. व्हाट इज आई नॉट, E naught omega C. Can I write this I naught as E naught by 1 by omega C? इसके बाद में थोड़ी देर के बाद आता है इसके पास, पहले इसकी बात कर लेते हैं. अगर हम इसको देखें और उसको हमारे रेफरेंस से कंपेयर करें तो हम कहेंगे कि करंट लीड कर रहा है बाय 90 डिग्रीज विद द EMF, पीछे करंट लैग कर रहा था. तो इन केस ऑफ कैपेसिटर current leads EMF by pi by 2 radians, और क्या EMF lags current by pi by 2 radians, ये ऐसे. और समझ में आ रही है ना बात, कुछ नहीं है, एकदम इजी है. अभी इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं, तो अगर हमको डायग्राम बनाना है तो E का तो डायग्राम रेफरेंस ऐसे ही बनेगा, जीरो,
ये ई नॉट है ना, माइनस ई नॉट, पे अटेंशन। आई नॉट के बारे में क्या कहेंगे, तो जीरो डालो, साइन 90 क्या बन गया बेटा 1, तो ये क्या बना आई नॉट, तो आई नॉट मतलब यहां पर मैक्स है, तो आई नॉट यहां से चालू होएगा। और ये आई नॉट है, यू विल टेल मी सर आई नॉट ई नॉट से बड़ा क्यों है, 2 मिनट में समझ में आएगा। बिकॉज आई नॉट इज ई नॉट ओमेगा सी, तो ई नॉट इनटू समथिंग ना, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, मैंने इधर बना दिया बड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको समझ आई? ये उसका डायग्राम है, ऑल्टरनेटिंग करंट डायग्राम। इसका फेजर डायग्राम कैसा रहेगा बेटा, ई नॉट आई नॉट आगे है ना, तो अगर आई नॉट इधर है तो ई नॉट पीछे है ना, तो अगर आई नॉट ऐसे चला गया तो ई नॉट इधर आ जाएगा ना, ऐसे। क्लियर है? ऐसे घूमता रहेगा ना ये, क्लियर है? एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे मिलेगा, इधर प्लॉट करके, इफ यू ड्रॉ इट, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आई and this will be instantaneous value of what, E ना, ठीक है। this phasor diagram, alternating diagram। आगे बढ़ते हैं, हम इसके अपोजिशन की बात करते हैं। क्लियर है डायग्राम ना? अभी हम बात करते हैं इसके अपोजिशन की। इफ यू कंपेयर दिस विथ E नॉट बाय R, तो हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ R? अपोजिशन by capacitor to flow of AC is 1 by omega C। इसको नाम दिया जाता है, इसका नाम भी रिएक्टेंस है बेटा, but it is offered by whom? So it is known as capacitive reactance। बोलो, इसका स्पेशल नाम है XC, which is 1 upon omega C, which can be written as 1 upon 2 pi FC, which is termed as capacitive reactance। बार-बार I am telling you so that you can remember। reactance नाम याद रखना। Can I say it is inverse to F? अगर ग्राफ बनाना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वेरी गुड, इंफिनिटी इंफिनिटी पता है ना? सुनो, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एक्सी कम, मतलब अगर कैपेसिटर है हाई फ्रीक्वेंसी पे तो लाइक अ शॉर्ट सर्किट। अरे अपोजिशन है ही नहीं, देखो ना अपोजिशन कम हो गया। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर अलाउज द फ्लो ऑफ एसी, जाओ, बट बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे एक्सी बहुत ज्यादा, देयरफॉर कैपेसिटर will act like an open circuit in DC। I can say indirectly capacitor blocks DC। कैपेसिटर, अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सम्स किए थे तो हमने आपको बताया था कैपेसिटर को निकाल दो क्योंकि डीसी करंट था उधर। कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, दिस इज द रीजन। मतलब अगर ऐसे हो, एक कैपेसिटर हो और एक डीसी हो, मैंने आपको बताया था ऐसे कर देना, इधर का वोल्टेज और इधर का वोल्टेज सेम हो जाएगा ना, बिकॉज़ ओपन सर्किट में वोल्टेज एंड ईएमएफ बिकम द सेम। Understood what's happening? Clearly get in. In case of capacitor, inductive reactance is the opposition.